release it. HODs, Nitin Desai, Neeta Alula, they have an amazing synergy with Ashutosh. So obviously you see what you see. My DOP, Murli, he's just this calm, silent pillar. That's such a support. And of course Vikram Gaikwad, who's a magician when it comes to look. So obviously it's a full team that has done what they have. Of course the captain is Ashutosh, and the vision always begins like that. Of course there is one thing that nobody would know and I would want to share is that you know, when the earlier 2 meetings were happening with Vision World, which would happen in town, and every time there was a dinner that we went to, guess who was there? There was Mr. Anil Ambani. Least did we know that the universe was always and rather making us travel towards Reliance. And so I want to thank Shivashi's and the Reliance team for giving us a worldwide release. And of course, I definitely want to mention Sunil Wadhwa, who's been instrumental in getting Reliance and us together. So thank you very much. And I hope as much as you enjoy every bit of the song and all, you will enjoy the film. I'm really keeping my fingers crossed. Oh, and I have to say that all, you know, when a man thinks of female characters and cannot see them weak, wants to see them strong, it is somewhere also related to a strong woman that he has in his life, and I feel she is completely every bit of the strength of Parvati Bai. Thank you so much. Bless you, and thank God for the music from this wonderful duo. We have all wept, cried, celebrated, all thanks to their. I think the screen mammothness is actually in their studios. पता नहीं studio है कि बड़ा ground लेते होंगे. Ajay, Atul, please come up on stage. Both Ashutosh and I, we knew that we would make the film here and they would take it Oh here. my God. That's what they are, my star duo. You know, आप हमेशा आप खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक करते रहते हैं. आप इतने लोग हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन करेंगे, इतने करेंगे. इसके लिए कुछ अलग किया, कुछ ज्यादा नहीं. I mean, as being as Maharashtrians, I don't think इतनी research लगी होगी. But did you actually introduce any instrument that probably was relevant in the 18th century? एक्चुअली सबसे पहले सबको नमस्कार, और मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा और अभिनंदन करना चाहूँगा ये तुतारी वालों को. तुमचं खरंच आभार, बिकॉज आजकाल असं बघायला मिळत नाही आणि आमचंच इंस्ट्रुमेंट गायब होत जातं. सो तुम्ही इतकं छान वाजता मगापासून इन सिंग, तर तुमचं दोघांचंही कौतुक खूप खूप छान. सो दिस इज व्हॉट आवर 18th century's most important instrument is. And the way we started brief, अशु सर हमको जिस उन्होंने पहला ब्रीफ जो बताया ना, तब ये नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इतनी तुतारी बीच बीच में हम सुनते हैं तो मोस्टली वो पॉलिटिकल जगहों पे ही ज्यादा सुनाई देती है. तो उनका ये कहना था कि ऐसा ना लगे कि ये तुतारी हमने वहां सुनी है. आज अगर आप मनमेशवा अगर आप अभी यहाँ पे नहीं सुनाई देंगी, लेकिन जो भी एप्पल या जो भी ऑडियो फॉर्मेट जो अवेलेबल है वहां पे सुनेंगे, यू विल लिसन समथिंग न्यू तुतारी इनटू इट, बिकॉज इट उसको हम लोग कॉल बुलाते हैं, जिसको मतलब इंग्लिश में कॉल कह सकते हैं, मराठी में इसको हड़ी कहते हैं. वो हड़ी है, ये यहां से देता है, फिर वो वहां से देता है, फिर तीसरा देता है, चौथा देता है, इकट्ठा मिलके वो एक फौज बनाते हैं अपनी, और फिर सब लोग इकट्ठा तुतारी देते हैं, क्योंकि 1.5 लाख की फौज है. तो यहां से वहां पता चलना चाहिए कि अभी यहां चालू करना है, चालू करें, चालू करो. इट्स लाइक दैट. वो ये एटमॉस्फेयर होना था, और वो हमने क्रिएट करने की कोशिश की इसमें कि कितना पॉसिबल है. तो हमने वो बड़ा सा स्टूडियो लेके, यू कैन नॉट इमेजिन, एक वो कोने में तुतारी वाला खड़ा है, ये कोने में खड़ा है, ये कोने में खड़ा है, ऐसे हम लोग एक्चुअली ऐसे हमने रिकॉर्ड किया. इट साउंड्स ऑसम, लाइक इट्स साउंडिंग सो वेल. एंड ऑफ कोर्स आवर ओन ढोल्स, आवर ओन ताशा. ये देखो, ये फिल्म करने का मौका हमें मिलना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है. क्योंकि अगर अजय अतुल ये फिल्म का म्यूजिक नहीं करते तो शायद अजय अतुल ये फिल्म प्रोड्यूस कर देते. ये फिल्म इतनी जरूरी है हमारे लिए. हम जब बचपन में इसकी किताबें पढ़े, इसकी हिस्ट्री पढ़े,
हम लोगों को ऐसा लगता था यार ये एक स्टोरी है, जो आशीष सर ने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हुआ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्यों हुआ, क्या वजह है, ये वजह लोगों को बताना बहुत जरूरी चीज है। और इतनी सारी स्टोरीज ऐसी पानीपत को लेके इतनी सारी स्टोरीज है, उसमें से कई पॉइंट ऑफ व्यू आपको इस फिल्म में दिखाई देंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम लोग जिस दिन स्टोरी सुन रहे थे ना, हम लोग शाम तक स्टोरी सुन रहे थे, हम लोग ऐसे ही थे, मतलब टोटली मेस्मराइज। और दूसरे दिन उठे और हम लोग 5 दिन के लिए शूटिंग को गए थे। आई एम जस्ट टेलिंग मेनी थिंग्स राइट नाउ, बट 5 दिन के लिए शूटिंग को गए थे। हम लोग को कहीं लगा नहीं था कि हम लोग एक गाना भी खत्म करके आएंगे। कैन यू इमेजिन, हमने 5 दिन में 5 गाने खत्म किए। 5 दिन में 5। दैट इज रिकॉर्ड ब्रेक ऑफ अजय। ये हम लोग इतनी जल्दी हम लोग कभी नहीं। गाने आ रहे थे। ये इन्फॉर्मेशन आपने जो बाकी प्रोड्यूसर को दी है, अब वो सोच रहे होंगे कि आशु सर के लिए 5 दिन में 5 गाने, बहुत नाइस। वन मोर थिंग अबाउट इट, बिकॉज सब्जेक्ट पानीपत था। Can I please call upon stage Shubhashi Sarkar sir? Thank you so much for making this such a success. And before a movie goes out, you have to see its reach, and you've already reached it. Thank you. Madam, आपके लिए important था कि this should be a grand project, and that's why you want to undertake it. Is that how it was for you? See, from Reliance's perspective, I think the basic philosophy in any this content creation journey we follow is that it's always a writer-director's medium. So for us, when we get an opportunity to work or get associated in any manner with Ashutosh, Sunita and their team, it's a moment of pride. And we'll give our all might in terms of taking the movie globally. Of course, not only in India. India, of course, will have a very wide reach, and also globally to have the biggest reach for this film. Because as many of them have told before me, that it's very important to tell this story. It is very important to tell this story to reach across to as many audiences. And yes, I mean, ultimately it is Ashutosh's vision, and our journey will be to work with him and associate with him and then take this journey to as many audiences as possible. So lovely. कितने फिल्में आपने की हैं जिसमें एक मराठी अंडरटोन आपने दिया है, ऑफ कोर्स मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी, बट वुड यू से, आई एम सॉरी, आई नो इट्स आस्किंग टू स्टार्ट, ये आपका ताज है इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटिंग मराठी हिस्टोरिकल साउंड, द कल्चर, साउंड थ्रू द साउंड। मुश्किल सवाल इनको दे दिया जवाब। मुश्किल सवाल मुझे दे दिया। एक्चुअली क्या होता है, एवरी फिल्म हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क बन के आती है जिसका एक जवाब देना बहुत जरूरी है म्यूजिकल लैंग्वेज में। बट आई वुड से कि ये फिल्म हमारे लिए इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने रिसर्च किया है पानीपत के बारे में। तो ये जैसे अजय ने कहा कि हमारी इच्छा थी कि ये फिल्म बननी चाहिए, इस पर फिल्म बननी चाहिए, किसी ने अगर नहीं की तो हम लोग उसको करेंगे। और जब ये फिल्म के बारे में हमें पूछा गया, और आशुतोष गोवारीकर जी ने पूछा है, जो मैग्नम जिनके फिल्में इतने एपिक विजुअल होते हैं और जो थॉट होता है, तो इमीडिएटली वो एक सरप्राइज था, एक ड्रीम था हमारे लिए पूरा होना। दूसरा एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमें बहुत बचपन से हमारी एक सपना था कि कभी जावेद साहब के साथ काम करने का मौका मिले। तो आशु सर की और ये फिल्म की वजह से जावेद साहब के साथ काम करने का मौका मिला, उनके साथ बैठने का, उनके थॉट्स सुनने का मौका मिला। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है हम दोनों के लिए, जो कहीं पर भी म्यूजिक सीखे नहीं है और कभी किसी भी एंगल से फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुकात नहीं रखते थे। सो लवली, आपकी बकेट लिस्ट आपने बहुत सारी यहाँ पे चेक की है। शुड वी ओपन द क्वेश्चंस टू मीडिया प्लीज? हु वुड आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे? वही है भाई। पानीपत की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम फर्स्ट पोस्ट। सर, एवरी टाइम यू कम अप विद द स्क्रीन, मतलब जो भी आता है, भले ट्रेलर हो, मर्द मराठा और नाउ मन में शिवा, यू आर जस्ट सरप्राइजिंग अस एवरी टाइम। मेरा सवाल आपसे है आशुतोष सर, whenever you bring a vision to a screen, to a big screen, so there is something around जो मतलब controversial हो ही जाता है। मतलब my question to you is a concern कि जो पीछे अभी हाल फिलहाल हमने को सुना था that again some community has taken a stand against the film and they're saying कि it is तोड़ मरोड़ के facts दिखाए जा रहे हैं, and if I'm not wrong कुछ आपके घर के बाहर भी कुछ protest हुआ था and you have taken a police security, so please tell us about that, what is happening? When you depict history cinematically,
always questions arise about how much has been included in the film, and also what has been excluded. जब आप एक इतिहास की किताब लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे पन्ने होते हैं सारा इंफॉर्मेशन उसमें डालने के लिए. That's why it's called an account. But when you bring cinematic history to screen, you have to deduct, you have to keep a path ready, you have to have a directive कि आपकी कहानी कहाँ शुरू हो रही है, कहाँ पे जाके खत्म हो रही है. तो कुछ लोगों को ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्शन नहीं कहूंगा, एक डाउट था कि क्या हमारी फैमिली इसमें आप दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं. तो वो डाउट क्लियर हो गया कि मल्हारराव होलकर जी हैं, धनकोजी शिंदे, शमशेर बहादुर, दत्ताजी शिंदे, महादजी शिंदे, नाना फडणवीस, बलवंतराव मेहेंदळे, अंताजी मानकेश्वर, बिनसूरकर, पुरंदरे, यशवंत पवार, ये सब के सब इस फिल्म का हिस्सा है. इनके अलावा और कितने सारे हैं, बिकॉज ये जब निकले थे मराठा पुणे से तो 40,000 की फौज निकली थी और पानीपत पहुंचते पहुंचते 50, 60, 70 तक हो गई थी, बिकॉज कुछ गठबंधन उन्होंने किए राजाओं के साथ. तो इतने सारी यहाँ पे इसमें अलग अलग जाति के लोग, अलग हिंदू, मुस्लिम, सब ये पूरी एक बहुत ही कोऑपरेटिव काइंड ऑफ आर्मी एंड आई थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग दिस टू स्क्रीन. तो जाहिर है कुछ ना कुछ सवाल उठेंगे, सॉल्व हो जाएंगे, मेरे हाथ खुले. Hello, this is Sakshi from E24 on your right. On your right, yeah. You're sitting really secluded. I came late too. Okay. My question to you is कि after the trailer has launched, trailer का काफी comparison बाजीराव मस्तानी मूवी से हो रहा है, and especially संजय जी का जो किरदार है, उनका जो लुक है वो सब बोल रहे कि एकदम खिलजी जैसा है जो रणवीर सिंह का पद्मावत में था. तो उन कंपैरिजन से आप कितना सहमत हैं? थैंक यू. कंपैरिजन हमेशा होगी. जैसे मैंने जब जोधा अकबर बनाई तो मुझे डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया मुगल आजम के साथ. हालांकि कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मुगल पीरियड है, अकबर है. जब बाजीराव आई तो जोधा अकबर से कंपैरिजन, कोई कनेक्शन नहीं है. पद्मावत आने से पहले जब पद्मावत का ट्रेलर आया तो वो बाहुबली से कनेक्ट हो गया. आई थिंक एज एन ऑडियंस हम जो प्रीवियस हिट या जो प्रीवियस फिल्म हमको पसंद आई थी उसके साथ हम इमीडिएटली कंपैरिजन करते हैं, तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारे केस में डबल डोज ये है कि इस फिल्म में जो जनरेशन है, सदाशिवराव भाऊ का जो किरदार है, ये बाजीराव का नेक्स्ट जनरेशन है. बाजीराव और चिमाजी अप्पा दोनों भाई थे. चिमाजी अप्पा का बेटा सदाशिवराव भाऊ, तो 20 साल के बाद की कहानी है. तो जाहिर है कपड़े, पहनावा, जो घर है शनिवार वाला वो वही होगा. तो इट्स ऑटोमेटिक, इट्स नेचुरल दैट यू विल फील कि दिस इज अ कंपैरिजन. एंड मैं कहता हूं कंपैरिजन अगर है तो अच्छी बात है, बिकॉज बाजीराव बहुत अच्छी थी. तो इट्स अ गुड थिंग दैट एटलीस्ट वी हैव अ गुड कंपैरिजन. इन्वेडर्स हमेशा आते रहे, आक्रमणकारी जिनको हम कहते हैं, तो उनका एक पहनावा है जो कॉमन होता है. बट हमने क्या किया है, एक ही इमेज है अहमद शाह अब्दाली जी की जो पेंटिंग है, और वो एक ही पेंटिंग है जो उनकी पेंटिंग ये इस तरह के थे, ऐसे दिखाते हैं, उसी को हमने किया. तो इसके बाद अगर वो किसी और से कंपैरिजन होता है तो आई एम होपिंग दैट इट डजंट गेट कंपेयर्ड विद एनी अदर फिल्म. दैट्स द अटेम्प्ट वी हैव मेड. But I hope if you compare to the character is the most important, and that's it. Yeah. सर वन मोर क्वेश्चन. जैसा आपने कहा कि ये बात हुई कि कम्युनिटी को प्रॉब्लम है, ऐसे आपकी नहीं कोई भी हिस्टोरिकल फिल्म आती है तो लोग आ जाते हैं, फिर उनको न्यूज चैनल्स पे बुलाया जाता है एंड ऑल दैट. क्या आपको लगता है कि ये कम्युनिटीज जो स्टैंड लेती हैं उनको एक्चुअली वो इतने सेंसिटिव नहीं है, बट दे आर डूइंग इट फॉर 2 minutes ऑफ फेम? डू यू थिंक दैट? नहीं, मैं नहीं सोचता ऐसे, बिकॉज मुझे लगता है कि आज क्या हो गया है, जो डिजिटल एज है इसमें सेलफोन्स हमारे हाथ में आ गए एंड नॉलेज हमारे हाथ में आ गया, पावर हमारे हाथ में आ गई. मैं कुछ भी देख के इमीडिएटली उसमें रिएक्ट कर सकता हूं. मैं अगर एक हलवाई के पास गया हूं, मुझे वहां पे हलवा खाया, अच्छा नहीं लगा, मैं कर सकता हूं कि हलवा बहुत बुरा है यहाँ. तो इन दैट सेंस आई कैन रिएक्ट इमीडिएटली टू एनीथिंग. सो वेदर वो, मुझे लगता है कि वो रिएक्शन आना जरूरी है और हमें उसका सॉल्व करना जरूरी है. हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. हाई योर सेंटर, राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. मेरा सवाल कीर्ति जी और अर्जुन सर से है. सर, जब भी कोई रियलिस्टिक फिल्म बनती है
या कोई बायोपिक होती है, तो इस पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी डायरेक्टर की और राइटर्स की हो जाती है कि अच्छे से लिखा जाए ताकि कोई मिस्टेक्स ना हो फिल्मी पर्दे पे दिखाने में। बट एज एन एक्टर आपकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि खुद भी एक रिसर्च हो, क्योंकि आंख बंद करके आप फिल्म कर नहीं सकते डायरेक्टर और राइटर के लिखे के बाद। तो आपने पर्सनल लेवल पे आप दोनों क्या रिसर्च रहा आप लोगों का पर्सनल लेवल पे? देखिए, सबसे पहली चीज जैसे अजयतुल सर ने कहा, जैसे आशु सर ने कहा, ये कहानी आई थिंक एवरी महाराष्ट्रियन इज अवेयर ऑफ दिस वॉर दैट वाज फॉट, मे बी एवरी इंडियन इज नॉट अवेयर। तो मैंने आशुतोष सर को मेरी इंसाइक्लोपीडिया मान के और उनसे बातचीत करके, बिकॉज देखिए अगर मैं किताबें खोलूंगा, जैसे उन्होंने कहा, ही हैज रिटन अ स्टोरी वेयर ही इज इंक्लूडेड the things that we can use in our film in that duration to tell a story. So I need to connect with him to say कि सर आपने क्या क्या सोचा है, मैं आपके थ्रू ही ये हिस्ट्री जानना चाहूंगा। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आप में से काफी सारे लोग ने सुना होगा पानीपत की लड़ाई हुई थी, जंग हुई थी, इतिहास में जो हमको विन और लॉस लिख दिया गया, लेकिन डिटेल हमको किसी को नहीं पता। और जब हिस्ट्री बुक साथ में है तो फिर क्या हम रिसर्च करेंगे? And genuinely, it's not about, see, I can research it, I can tell you, मैं आपको झूठ बोल सकता हूँ कि मैंने 100 किताबें पढ़ी। मैंने सिर्फ एक आदमी के साथ समय बिताया और जितना समय हो सका, जितनी बातचीत कर सका, जितना उनसे परख सका, जितना मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, आई ऑब्जर्व फ्रॉम हिम, बिकॉज हिस्ट्री ऑफ दिस टाइम इज वेरी वास्ट। I didn't want to get confused. I focused on my character because Sadashiv Rao Bhau, like you said, जब एक बायोपिक ये तो खैर एक जंग की फिल्म है, I treated it like, okay, I will do justice to my character because there is a captain who will take care of the world, who will take care of the story. I tried to focus on what he wanted, what his interpretation from the history was, that Sadashiv Rao Bhau was. He was eventually a warrior. He was eventually somebody who was a leader with a certain amount of silent resilience. He was somebody who believed that this is what he was meant to live for and die for. There was a certain gravitas, a certain carriage that he had, where he had complete confidence and belief in his decision making. He was also a vulnerable man. Now, these are layers that a human being has. वो शायद किताबों में आपको इतनी आसानी से नहीं मिलते, लेकिन जब आप डायरेक्टर के साथ समय बिताओ, the compassion he had towards his people, the worry he had for the women that traveled, the way he faced the enemy, even though there was a certain understanding that maybe we are less, they are more. ये जो layering होती है, ये अगर आप देखें तो किताबों से आगे बढ़ती है। ये एक जेन्युइन दिल से आने वाली इमोशन होती है, where you feel the vulnerability of being responsible for 100,000 people standing behind you. जब हर हर महादेव चिल्लाना है, उसके लिए अगर मैं किताब पढ़ भी लूं, अगर मेरे दिल से वो किरदार निकल के नहीं आएगा, अगर मैं उससे असिमुलेट नहीं करूंगा, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रह ही जाएगी। तो आई फॉलोड हिज विजन फॉर माई कैरेक्टर एंड आई हैव इम्प्लिसिट फेथ दैट द फिल्म ही विल डू जस्टिस टू द हिस्ट्री ऑफ। अगर मैं ज्यादा हिस्ट्री में घुस जाता तो फिर मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, गलत बात है। I also want to add that I mean I did obviously try to read a little bit. मेरी हिस्ट्री बहुत ही बुरी है, मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, तो मैं पढ़ के एग्जाम दे के भूल जाती हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट, पार्वती बाई के बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखा गया है। आप अगर ढूंढेंगे भी तो आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, बेसिक चीजें मिलेंगी। देयर इज अ लॉट to Parvati Bai's character, which I feel has also come from him. So, and I completely, like him, I believe that I'm a director's actor, and I feel like he is the one who has the vision, who's directing the film, who's showing you the film. So his directions is what is my history. Like I have to follow only that. Yes, because there is Marathi flavor in it. वो मैं महाराष्ट्र नहीं हूँ, मैं पंजाबी हूँ, तो मुझे ये समझना था कि अगर मैं मराठी प्ले कर रही हूँ तो मैं मराठी दिखनी चाहिए। जब मैं चल रही हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज जो है वो उनकी तरह होनी चाहिए। जब मैं मराठी बोल रही हूँ तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं पहली बार बोल रही हूँ, मैं बोलती आ रही हूँ। सो या टू सॉर्ट ऑफ मेक श्योर दैट इज पॉलिश्ड, आई डिड सॉर्ट ऑफ did do my homework. And I remember having this conversation on the fact that जब हम पीरियड फिल्म्स करते हैं तो एक वो होता है कि अदब होनी चाहिए, एक पॉइज से चलना चाहिए, इस तरह से पोज करना चाहिए, इस तरह से बैठना चाहिए। And on that also I feel like I had a very interesting conversation with him where I was like, I am not behaving exactly like that. Are you okay with it? So he was like, who has told you that they behave like this? Where do we know this from? So I think you have to get
Parvati Bai's body language and not the fact that you're doing a period film and the body language has to be that. अगर आप इनके जवाब सुने तो you'll understand he's very systematic, very correct. He's very sure about why he's making the film and what he's doing. Eventually हमको किरदारों को पर्दे पर लाना है, वो असली लगने चाहिए, 3 dimensional होने चाहिए, 2 dimensional होंगे अगर हम सिर्फ by the book ऐसे करेक्टली कर ले. लेकिन अगर हमारे एक vulnerable innocent moment में, if you see the body language of a vulnerable man also, Sadashiv Rao Bhau of course was a warrior, but he was also a normal person. तो जो एक हीरो होता है वो अपने 4 दीवारी के अंदर इंसान भी होता है. तो I think it's a tale of human spirit eventually. That is what these men were. They were human beings who put our country before anything else. तो I think वो अगर emotion आएगा फिल्म में ना, बाकी सब अपने आप आ जाएगा. So just an addendum to that. कि मेरा इतिहास का जो सोर्स है वो शिजवलकर साहब है, जिन्होंने पहला अकाउंट लिखा 1761, और पुणे स्थित जो हिस्टोरियन है जिनका नाम है पांडुरंग बलकाड़े जी, जिन्होंने कुछ 1000 सेमिनार्स किए हैं जस्ट ऑन पानीपत, वो ऑफिशियली फिल्म पे है. तो दैट्स माय, दीज आर माय 2 सोर्सेस. अर्जुन जी, आपसे दूसरा सवाल ये था कि आपके करीबी दोस्त रणवीर सिंह इससे पहले इस तरह की फिल्में 3 कर चुके हो, इस तरह का किरदार. तो फिल्म शुरू होने के बाद आपकी कभी मुलाकात हुई, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस कभी आपसे शेयर किया हो? पहली बात तो उन्होंने एक ही फिल्म की है, बाजीराव मस्तानी, जिसमें वो पेशवा बने थे. तो वो 3 पीरियड फिल्म. अच्छा, रामलीला, पद्मा. ओके, नहीं ठीक है, चलो खैर वो हम साइड में हटा देते हैं. जी, हम एक्टर्स हैं, हम दोस्त भी है. हम कई तरह की फिल्में करते हैं जो ओवरलैप हो जाती है इन टर्म्स ऑफ जॉनर, बट इवेंचुअली कहानियां अलग होती है. So we've always interacted at a friendly level. We don't go into details of discussing work every time we meet. I mean, हालांकि जब 83 की वो फोटो दिखाता है तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छी लग रही है, और I'll show him an image of what we were shooting and he'll say. So, but eventually, see, we are friends. We don't go into talking about work beyond a point because it is not something that I think is ethical also to be discussing one film and another film with each other, because directors के visions अलग होते हैं. I might corrupt my thinking if I ask Ranveer, तूने कैसे किया था या तूने कैसे सीखा था. बहुत चीजें ऐसी होती है where you have to trust the director. And for example, I had asked him this question. It's because you spoke about Ranveer. I had asked him. I said, now the dialect. He said, I don't want to get into the detail of the dialect because it is a dramatic film that deals with a lot of information that people have to process and understand. We make the film for the entire country. If you speak with a dialect, that is fine. But even if you don't speak with the dialect, the emotion has to translate and people have to understand the story of the film. He made a firm choice. He said, I don't want you to get into the nitty-gritties of it. And as a Maharashtrian, he said, I do not have this thing that you need to prove कि तुम्हें मराठी है. He said, जहाँ पे जरूरत होगी, और हमने इस्तेमाल किया जहाँ पे अतमाघात नहीं, अतापन लड़ाई. Yeah, so wherever जरूरत. Hi. That is basically how I followed it, and I didn't get into too much detail with my fellow friends about it because it's a very individual process. I think you can have a chat post the film. Yeah, we can discuss it post. We can compare notes. But he got really excited seeing the trailer, so I'm happy. आशुतोष, आपको और द एंटायर टीम को बधाई हो. ट्रेलर सुपर्ब. कितना एक फिल्म आप जो करते हो उसके बाद एक लंबा समय हो जाता है आपकी दूसरी फिल्म के लिए, बिकॉज यू ऑलवेज थिंक बिग, एक बड़ी फिल्म. तो ये एक आपकी आदत बन गई कि यार जो भी करना है कुछ बड़ा ही करना है, कुछ हिस्टोरिकल करना है. एंड while writing Panipat, how much time did you take? Did you have that thought कि अर्जुन, कृति, like always you think of the character like who's going to play what? So something about that. And do you feel like यार छोटी फिल्म नहीं करनी है, मुझे तो स्ट्रेस लेना है तो बड़ा वाला स्ट्रेस लेना है. I think ये थॉट कहीं ना कहीं गुजरा जरूर होगा. हाँ, मजा नहीं आता ऐसा है. नहीं, but जब हर फिल्म मेरी जो खत्म होती है अगर हिस्टोरिकल है, तो फिल्म करते वक्त और खत्म होते वक्त मैं कसम खाता हूँ कि अगली फिल्म 2 किरदार होंगे, एक घर होगा, स्विट्जरलैंड में होगा, और उनके बीच कहानी है, एक रात की कहानी है, कॉस्ट्यूम भी ज्यादा नहीं. सर, ये कैसी कसम है जो हर बार टूटती है? हर बार टूटती है, बिकॉज मुझे थीम जो है वो अगर थीम अट्रैक्ट करता है जिसमें द थीम हैज टू बी यूनिवर्सल थीम, उस थीम के पीछे अगर एक बड़ी कहानी है तो फिर आई लाइक टू चूज इट. एंड एज आई सेड, मेरा वो थीम चूज, मैं से हमेशा कहता हूँ कि हमें अभी छोटी फिल्म बनानी चाहिए, पर बड़ी फिल्म जब दिमाग में आती है तो मैं पूछता हूँ, ओके लेता हूँ, फिर मैं शुरू करता हूँ. जहां तक स्क्रिप्टिंग का सवाल, मुझे एक 1.5 साल लगा स्क्रिप्ट लिखने के लिए. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब स्क्रिप्ट में पूरा हिस्ट्री रिसर्च करके पूरे कैरेक्टर्स क्रिएट कर रहा था, तो मुझे हमेशा स्क्रिप्टिंग के वक्त ही पता होता है कौन सा एक्टर इसे प्ले करेगा. हर बार वो एक्टर मिलता है ऐसा नहीं है.
This time when I read the description, I realized that सदाशिवराव भाऊ एक योद्धा है, सेनापति है, stubborn आदमी है, अड़ियल है, और ये इसमें ताकत इतनी है कि अगर ये सेना में अगर शत्रु में घुस गया तो लाइक रग्बी प्लेयर 10-12 को ले जाएगा. तो मैं सोचने लगा किसको लूं, एंड सीधा अर्जुन का ही नाम आया मेरे माइंड में. तो मैंने लिख दिया कि ये अर्जुन करने वाला है ये रोल. इसको मैंने पूछा ही नहीं था. बरेली की बर्फी और हीरोपंती मुझे इतनी पसंद आई थी कि मुझे लगा था कि ये लड़की अगर पार्वती भाई महाराष्ट्रन करेगी तो शायद बहुत अच्छी लगेगी. तो आई पुट हर नेम. एंड संजय दत्त के बारे में मैं सोचता था कि इतने साल हो गए, अब बीन अ को-एक्टर विद हिम, नाम कभी मौका नहीं मिला है. तो मैंने संजय से पूछा कि संजय, हाउ कम यू हैव नॉट डन अ हिस्टोरिकल बिफोर? He said, nobody asked me. So, bro. So I said, okay. So I'm asking you, Panipat, historical. He said, yeah, I'm doing it. So, but I'm very fortunate कि हमारी पहली मीटिंग में ही अर्जुन सेड यस, कृति सेड यस, एंड मुझे वो जो कास्ट मैंने 1.5 साल से मैं लिख रहा था नाम, वो मुझे कास्ट फिल्म में आज मिली. So I'm very very happy with that. बट मैं ये कहना चाहूंगा ऑन अ साइड नोट, जब इन्होंने नरेट की और जब डिस्कशन हुई और मैंने बोला सर इट साउंड्स अमेजिंग, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट एक्सेट्रा, तो उन्होंने एक पासिंग नोट पे जाते जाते चलो फैंटास्टिक, वी फिगर एवरीथिंग आउट और तुम्हें टकला होना पड़ेगा इस पिक्चर. तो दैट वाज नेवर द कॉन्वर्सेशन स्टार्टिंग पॉइंट, दैट वाज द फिनिशिंग. कि अब तो तुम कर रहे हो, अब तुम फिगर आउट कर लो बाकी सब कुछ. तो वो मेरे लिए था. अच्छा, मेरे लिए पहली चीज थी यार मैं कैसे लगूंगा. तो full credit to him. He was very very certain I would look a certain, and then eventually जब हमारी और meetings हुई, he showed me the imagery that he had, the images that he had of Sadashivrao Bhau, the paintings that were there, and even I realized कि चलो ये कर सकते हैं, ये हो सकता है. And then he did a proper look test to convince the fact that everybody is on the right note also. So how was it for you also, Arjun? Like हमेशा हमने देखा था कि पैप से हमेशा बचते थे वो जो लुक. हाँ, मैं सबको टोपी पहना था, खुद भी टोपी पहन रहा था. Last question, please. We have a show. I think the amazing part was that he had full conviction it will look good. We did a look test with the bald cap and all everything first, almost 6 months prior, and then we were convinced and everything fell into place. जब finally आज क्या तारीख क्या है आज? 23rd. तो exactly पिछले साल 16 नवंबर को मैंने अपने बाल मुंडवाए थे और वो घेरा शेंडी रखी थी हमने exactly 1 साल पहले. और मुझे याद है हम महबूब में कर रहे थे उसके बाद, एंड सर केम टू द वैन एंड वी डिड एवरीथिंग और मूंछ ऐसे हो गई और सब कुछ हो गया. तो ऐसे यार अब इसको छुपाना भी तो पड़ेगा, बिकॉज आई ऑब्वियसली वांटेड इट टू लुक अ सर्टेन वे व्हेन इट केम ऑन स्क्रीन. तो मैंने टोपियां पहनने शुरू की. आज जब मैंने टोपियां निकाली सारी, बिकॉज अब जरूरत नहीं पड़ती, आई रियलाइज मैंने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया था टोपियां पहनने में और आप लोग से छुपाना पड़ रहा था. इवन दो आई वांटेड टू रोम अराउंड, इट वाज क्वाइट अननर्विंग टू हाइड इट ऑल द टाइम, बट इट्स वर्थ इट. I think you should auction those. Have you already done it? No, that is part of, actually honestly that was अभी तुमने ऐसे ऑक्शन करी, but I wanted to do something nice with it. I kept it for after the release. I'll do something, but I think it's amazing that it comes together in the film. फिल्म में अच्छा दिखता है तो सब जायज है. कुछ खराब फोटोज आएंगे टोपी पहन के वो भी जायज है. And I also realized recently that I don't have a single picture with him except for the one where I'm hiding his face because we couldn't click pictures. तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमें 7 महीने लगे फिल्म की शूट खत्म करने में. हमने दिसंबर एंड में चालू की थी और जून में खत्म की. आप में से किसी के पास मेरी बॉल्ड लुक नहीं थी इसके पहले की फिल्म के पर्दे पे आ जाए. तो आई थिंक आई डिड अ वेरी गुड जॉब एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी डू दिस जॉब, ताकि लोगों को ये फिल्म में अच्छी तरह दिख पाए. टीम पानीपत से मेरा एक सवाल है. जिस तरीके से पानीपत सेलिब्रेट्स द ब्रेवरी एंड वैलर ऑफ मराठा एम्पायर, इट्स अ न्यू चैप्टर इन मराठा एम्पायर. वैसे ही एक और फिल्म आई है विच इज सेलिब्रेटिंग द मराठा एम्पायर, विच इज तानाजी. So what, as a filmmaker, Ashu sir, what do you want to say about it? As an actor, Kriti and Arjun, what do you want to say about it? And as a music composer, Ajay Atul sir, what do you want to say about the film? हर हर महादेव. उसमें भी हमारा एक गाना है यार, वो भी हमारी फिल्म है. तानाजी, यू कैन नॉट इमेजिन, हमारे लिए इतने बड़े स्टार हैं, लाइक महाराष्ट्र के लिए तानाजी. हम सरदार तानाजी, सूबेदार तानाजी, हम लोग उनके पौड़े से हमारा करियर शुरू हुआ तानाजी के पौड़े से. तो हमारे लिए वो जो कथा है वो गाथा से कम नहीं है और हमें बहुत खुशी है वो फिल्म से जुड़ने के लिए भी. तो हम वो फिल्म को भी उतनी शुभेच्छा, उतनी शुभकामना देते हैं. अच्छा होगा वो भी. क्या ट्रेलर सुपर. और आई थिंक इतनी अमेजिंग चीज है दैट उस जमाने से इतनी सारी कहानियां हैं जो आनी चाहिए बड़े पर्दे पर, जो दर्शाई जानी चाहिए. आई थिंक इट इज सो अमेजिंग. वी आर इन दैट टाइम, इन दैट प्लेस वेयर टुडे देयर इज एन ऑडियंस टू वॉच
the stories that maybe they've heard of now, पूरी दुनिया को वो कहानियां देखने का मौका मिलेगा. तो चाहे पानीपत हो या तानाजी जो फिल्म है जो अजय सर कर रहे हैं, I think it just shows the amount of stories that are hidden in our history. And instead of looking west for ideas, I think we can just look into our own history and give these stories for our kids to grow up and know that there were brave people that made sure that India is what it is. I think we have a very brave director in Ashutosh sir and everybody who joined him in this journey. We really thank you for being here. One last question. Oh God, please make it quick. We really let her ask. Thank you. इधर actually got अपने फोन के पीछे छुपी हुई है. But she got very excited when Ashu sir did Sanju sir's imitation. और फोन साइड लेके बोला, अरे ये वो मेरा, अरे बूमरैंग. अच्छा कृति, आपसे सवाल है. यहाँ पे अर्जुन को मराठी सिस्टम मालूम है, स्टाईल मालूम है, यही के हैं. अजय अतुल त्यांना काय सांगायचं त्यांना सगळंच माहिती आहे. सेम विथ आशुतोष एंड मैम. आपको मराठी कितना टफ गया या कितना इजी गया और कितना इन लोगों ने रैक किया या नहीं किया? नहीं बिल्कुल नहीं. तो मैं बहुत अच्छे से बोल नहीं सकती हूँ, मैं पिकअप कर सकती हूँ वर्ड्स, बट मला समजला. सो आई अंडरस्टैंड वॉट एवर यूर सेइंग. आपने इधर जो बोला सब समझ में आया, तो कोई काम नहीं खींच सकता था क्योंकि समझ में आ रहा था. Good one. I just want to add one thing. Please watch the film. The way she has, उन्होंने जिस तरह से मराठी बोला है, आमच्या मराठी लोकांना पण आवडला. But I have to say that during the film ना मुझे बहुत जैसे मुझे हो रहा था कि और डाल दूं और बोल लूं, तो मैं हर डायलॉग के आगे पीछे ना सर को बोलती थी, सर ये इसमें इसको क्या बोलते हैं मराठी में. एंड आई यूज्ड टू ऐड इट, एंड बाय द एंड ही वाज लाइक, तू सबसे ज्यादा मराठी बोल रही है पूरी फिल्म में और तुझे मराठी नहीं आती. Can we please take a moment? Yeah, on just a closing note, I just want to say that 3-4 people who couldn't be here today. Raju Khan, choreography, both the songs, Bharat Maratha and Vanme Shiva. Z Music, Anurag couldn't be here today. Javed Saab is traveling and we really miss him. Baba couldn't and yeah. But no, he's there, bro. संजय हमारे साथ ही है. सर एक बार. Can you just take the mics, please? We'd like you all to please pose for media. Everybody, picture time. And thank you all for being here. What a wonderful gathering for all of us to celebrate this beautiful film, historical film.